Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English. And in this video, we are going to explain top 10 MCQs related to English grammar integrated. This video is primarily helpful for all sorts of examinations where English grammar is asked, particularly for upcoming examination of TGT and PGT, be it of NVS or UP TGT PGT or Jharkhand PGT. Moreover, this is also beneficial for all sorts of banking or steno examinations. First question is, what is the correct structure? So out of these four sentences, only one has correct structure. पहले वाले को देखिए. Knowing him absolutely, I decided to help him immediately. The problem lies with knowing. Actually, the verb know is hardly used in progressive form. So what should have been? Having known him completely, absolutely, I decided to help him immediately. So first I had a complete information about him and then I decided to help him completely. So having known him rather than knowing. So know will not be used in progressive form. So this sentence is wrong. Walking on the road, a stone hit me. This is an example of a dangling clause. In the forthcoming questions, we'll discuss dangling clause. Particularly, it is when there is confusion what is the subject of the main clause. The clue is given by the non-finite clause like this. This is non-finite clause and this is main clause. So when the confusion lies with the subject of the main clause and what this non-finite clause refers to. Walking on the road, a stone hit me. It seems that stone was walking on the road and then it hit me. But who was walking on the road? I was walking on the road. मैं रोड पे चल रहा था और एक स्टोन आकर के मुझे लगा. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये जो नॉन फिनिट क्लॉज होती है, नॉन फिनिट क्लॉज की जो वर्ब होती है वो किसको रिफर करती है? सब्जेक्ट को. आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड एंड स्टोन हिट मी. सो जब हम नॉन फिनिट क्लॉज, यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज जो सब्जेक्ट का एक्शन होगा उसी को रिफर करेगी. दिस एक्शन रिफर्स टू द एक्शन ऑफ स्टोन एज इफ स्टोन इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? I was hit by a stone. Walking on the road, I was hit by a stone rather than a stone hit me. यही एग्जाम्पल है डैंगलिंग क्लॉज का. नेक्स्ट, being Indian, it is our duty that we should do something for the country. Being Indian is non-finite clause. So since we are Indian, it is our duty that we should do something for the country. This is correct structure. This is absolutely correct structure. Now look at this fourth sentence. Looking out of the window, the mountains were covered with snow. Again, this is an example of dangling clause. Looking out of the window. Who was looking out of the window? Probably I or the speaker. But what is suggested to be the subject? Mountains. While I looked out of the window, I saw that mountains were covered with snow. Should be our sense. लेकिन इस सेंटेंस में देखने से लग रहा है कि mountains were looking out of the window and they were covered with snow. तो इस क्लॉज को फिर आपको रीफ्रेज करना पड़ेगा, रीफ्रेम करना पड़ेगा. Looking out of the window, I saw the mountains covered with snow. This should be clear structure. Next question. He stood on the desk to catch the attention of the audience. Identify the underlined portion. This portion has to be identified. क्या है ये? Noun phrase है, verb phrase है, adjective phrase है, adverbial phrase है. अब आप देखिए कि काम क्या कर रही है ये. This underlined portion किस चीज का काम कर रहा है? He stood on the desk to catch the attention and it creates a purpose. Why he was standing on the desk? So it has a purpose. Purpose क्या था? To catch the attention of the audience. So this particular portion works as an adverb. और adverb का function adverb clause भी कर सकती है, adverb phrase भी कर सकती है, जिसको कि हम adverbial phrase भी कह सकते हैं. So this is our answer. नाउन फ्रेज कोई भी नाउन का काम करेगी, या तो वो सब्जेक्ट की जगह पे होगी या फिर एक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकती है
या फिर वर्ब का, लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकती है। यहाँ पर ना तो वो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है लिंकिंग वर्ब का, ना ही वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ना ही सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट है। तो ये भी रहा। वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज जैसे होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब, या मॉडल ऑक्सिलरी एंड देन इन्फिनेटिव, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो नॉर्मली हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। एग्जेक्यूटिव फ्रेज जो कि एग्जेक्यूटिव का काम करती है, और वो कहाँ पे, किसी नाउन को मॉडिफाई करने में, क्वालिफाई करने के काम आता है। जो एग्जेक्यूटिव का काम, वही नाउन एग्जेक्यूटिव फ्रेज का काम होगा। यहाँ पर ये किसी भी नाउन के आगे या नाउन को प्रेडिकेटिव फॉर्म में क्वालिफाई नहीं कर रहा। सो आवर आंसर इज एडवर्बियल फ्रेज। Next question. He and his friends have organized a meeting in a village where their parents had advised them. किस तरह का सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं? अब आप देखिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। He and his friends have organized a meeting in a village, एक तो क्लॉज रही ये। ही एंड हिज फ्रेंड्स, ये सिंपल सेंटेंस में काउंट होगा, एक सब्जेक्ट में काउंट होगा ये, रादर देन कभी आप इसको कंपाउंड से कंफ्यूज कर लो। कंपाउंड के होने के लिए ये एंड के दोनों तरफ दो क्लॉजेज होनी चाहिए, एक एंड के पहले और एक एंड के बाद में। लेकिन जब कोई दो वर्ब के कंपोनेंट्स या दो नाउन प्रोनाउन के कंपोनेंट्स एंड से जुड़े हुए होते हैं, तो वो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड यूनिट होती है, लेकिन वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनाती। कंपाउंड सेंटेंस के लिए दो क्लॉजेज, दो पैरेलल क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट पैरेलल क्लॉजेज होनी चाहिए। तो यहां तक एक क्लॉज ये हुई आपकी प्रिंसिपल क्लॉज। वेयर देयर पेरेंट्स हैड एडवाइज्ड देम, वेयर, वेयर रिफर्स टू दिस प्लेस, यानी दिस क्लॉज इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी कौन सी हुई है? रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि ये डायरेक्टली इस एंटेसिडेंट के लिए यूज की जा रही है। वेयर, वेयर, वाई, व्हेन, ये भी रिलेटिव क्लॉज बनाते हैं अगर इनसे पहले इनका एंटेसिडेंट हो तब। वेयर से पहले अगर कोई प्लेस हो तो वो उसका रिलेटिव क्लॉज बना सकती है। टाइम से पहले यानी व्हेन से पहले कोई यूनिट ऑफ टाइम हो तो वो रिलेटिव क्लॉज बन जाएगी। ऐसे ही हु से पहले कोई एंटीसीडेंट हो तो रिलेटिव क्लॉज, दैट से पहले कोई एंटीसीडेंट हो तो रिलेटिव क्लॉज, वाई से पहले भी इवन रीजन अगर दिया हुआ है एज अ वर्ड तो वो भी रिलेटिव क्लॉज हो जाएगी। तो यहाँ पर एक रिलेटिव क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के लिए जैसे अभी बताया कि दो पैरेलल क्लॉजेस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होना चाहिए। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन से होते हैं? इसको आप फैन बॉय से भी यूज कर सकते हो, फैन बॉयज। फैन बॉयज, F4 फोर, A4 एंड, N4 नॉर, B4 बट, O4 और, yet, Y4 yet, and S4 so. So these conjunctions make compound sentences. Simple sentence when there is only one principal clause in the sentence, no other clause. Non-finite clause can also be there, but not subordinate clause or coordinate clause. So answer is A, complex sentence. Next question, dangling clause. जो हमने first question देखा था उसमें dangling clause थी. So dangling clause क्या होती है? When the participle creates a confusion as to whether it is used for the subject or the object of the main clause. एक बात जो हम पहले कह रहे थे कि जो पार्टिसिपल क्लॉज है वो क्रिएट करती है कंफ्यूजन कि वो किसके लिए यूज हो रही है, मेन क्लॉज के सब्जेक्ट के लिए या फिर ऑब्जेक्ट के लिए। When the participle creates a confusion as to whether it is used for the verb in the main clause or the subordinate clause. When the participle creates a confusion as to whether it is used for the subject or object of the subordinate clause. When the participle creates a confusion as to whether it is used for the subordinate clause or the main clause. अब एक एक करके इनको देखिए। When the participle creates confusion as to whether it is used for the subject or the object of the main clause. पहला सेंटेंस देखिए, जैसे this is our participle looking out of the window.
Now it is creating a confusion whether it is used for the mountains और for somebody else. Just like इस वाले को देखिए पहले, walking on the road, walking जो है यहाँ पे पार्टिसिपल है उस क्वेश्चन का. अब ये walking creates a confusion whether it is used for the stone or me, subject और object. तो यहाँ पे किसके लिए यूज किया हुआ है? वॉकिंग मी यानी कि आई के लिए और वॉकिंग स्टोन के लिए. और ये क्या है? आपकी मेन क्लॉज. तो जब पार्टिसिपल एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि वो मेन क्लॉज के सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, तो वो किसको रिफर करता है? डैंगलिंग क्लॉज को रिफर करता है. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन. व्हेन द पार्टिसिपल क्रिएट्स अ कंफ्यूजन वेदर इट इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. बाकी क्यों नहीं है? When the participle creates a confusion as to whether it is used for the verb in the main clause or the subordinate clause. पहली बात तो subordinate clause वाले जितने भी options होंगे सब गलत हो जाएंगे, because there is no subordinate clause in these kind of questions where dangling clause exists. वो simple sentences होते हैं जहां पे participle clause या फिर नॉन फिनिट क्लॉज को हम यूज करते हैं. सबॉर्डिनेट क्लॉज वाले सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं. तो ऑब्वियसली जिसमें सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो हमारे वैसे ही गलत हो गए हैं. तो आपकी डैंगलिंग क्लॉज होती है ये वाली. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैविंग एन एरर. सो विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर? It is necessary for everything to prepare himself thoroughly in his early years for the tasks that he will have to perform in life. देखिए, it is necessary for everything to prepare himself. यहीं पे ही आपकी मिस्टेक आती है. This part contains an error. It is necessary किसके लिए? Everything to be prepared या फिर उस पर्सन के लिए? It is necessary for, जो फोर आया वो किसके लिए आया है? सब्जेक्ट के लिए आया है या फिर किसी ऑब्जेक्ट के लिए आया है? सो इट इज नेसेसरी फॉर द पर्सन टू प्रिपेयर हिमसेल्फ. सो इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू प्रिपेयर एवरीथिंग हिमसेल्फ thoroughly in his early years for the tasks that he will have to perform in life. So this should be our structure. Next question. Name the underlined clauses in the following sentence. We have to tell the name, means what kind of clause it is, which clause it is. The body stood on the burning desk whence all but he had fled. ये underlined portion है. अब ये कौन सी clause को refer करता है? This information refers to this burning desk. The boy was standing on the burning desk from where all but he had फ्लैट. सो इस बर्निंग डेस्क के लिए ही एक क्लॉज आती है. जब क्लॉज अपने एंटीसीडेंट के लिए आती है तो वो कौन सी बन जाती है? रिलेटिव क्लॉज, जिसको कि आप एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हो. जो ओरिजिनल ग्रामेटिकल नेम है वो क्या है? रिलेटिव क्लॉज. फॉरगिव अस एज वी फॉरगिव आवर एनिमीज. सो व्हेन द क्लॉज स्टार्ट्स विद एज से कौन सी क्लॉज स्टार्ट होती है? एज बनाता है कंपैरिजन, द वे. सो इट वर्क्स एज एन एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन. और एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन या फिर एंड जो क्लॉज एडवर्ब का काम करती है, चाहे वो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन हो या कोई और हो, तो वो क्लॉज ही क्या बन जाती है? एडवर्ब क्लॉज. सिंस दिस क्लॉज वर्क्स एज एन एडवर्ब. फॉरगिव अस द वे, लाइक, एज. सो एडवर्ब का काम करती है क्लॉज, तो एडवर्ब क्लॉज. ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज डन. अब आपको पता है प्रपोजिशन के बाद में हमेशा क्या होना चाहिए? नाउन या फिर नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज. तभी वो प्रपोजिशन का वर्क अपने आप में कंप्लीट होता है. ये उसकी पोजीशन क्लियर करता है. सो ऑल डिपेंड्स ऑन. अब आप देखिए ऑन व्हाट. यहाँ पे व्हाट का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा on how it is done. So this clause works as a noun. What का आंसर क्या होगा? Noun. और noun का जो फंक्शन करेगा वो क्या होगा?
noun clause. So this is noun clause. Do you know when the train will arrive? When the train will arrive. Do you know what? Do you know what? What का आंसर होगा when the train will arrive. So this clause works as a noun. ये भी क्या है? Noun clause. This is how you can know whether they are noun clauses or relative clauses or adjective clauses or adverb clauses or something like that. नाउन क्लॉज वो होगी जो नाउन का काम कर रही होगी सेंटेंस में, एडवर्ब क्लॉज वो होगी जो एडवर्ब का काम कर रही होगी, और रिलेटिव क्लॉज वो होगी जो एडजेक्टिव का काम कर रही होगी. इट इज दैट सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Point out the noun clause and say whether it is the subject of the verb or the complement of some verb. Some verb means linking verb, or in apposition to some noun or pronoun, or the object of some preposition. नाउन का फंक्शन ही आप देखिए क्या क्या काम करता है. सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का, या फिर एपोजिशन, केस इन एपोजिशन. यही नाम के नाउन के काम भी होते हैं. जो नाउन का काम वो नाउन फ्रेज का काम, वही नाउन क्लॉज का काम. अब यहाँ पे देखिए कि नाउन क्लॉज कौन कौन सी है, कौन सा पार्ट नाउन क्लॉज है. इट इज क्लियर दैट ही वॉज गिल्टी, ये पोर्शन नाउन क्लॉज है. द रिपोर्ट दैट ही वॉज किल्ड इज अनट्रू. द रिपोर्ट दैट ही वॉज किल्ड is untrue. This portion is noun clause. He was very hopeful that he would succeed. ये portion noun clause है. My verdict is that the prisoners shall die. इतना पोर्शन नाउन क्लॉज है. अब नाउन क्लॉज का काम देखिए. इट इज क्लियर. क्लियर के बाद में अब देखिए क्लियर का फंक्शन क्या है. जब कोई नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज किसी एडजेक्टिव के बाद में आती है, नाउन नाउन जो भी होगा, क्लॉज या फ्रेज, तो वो किसका काम करता है? कॉम्प्लीमेंट का. सो दिस नाउन क्लॉज वर्क्स एज कॉम्प्लीमेंट. इट इज क्लियर व्हाट दैट ही वाज गिल्टी. दूसरा, द रिपोर्ट दैट ही वाज किल्ड इज अनट्रू. मेन क्लॉज क्या है? द रिपोर्ट इज अनट्रू, और दिस क्लॉज हैज बीन इंसर्टेड. जब कोई क्लॉज इंसर्ट की जाती है तो वो क्या हो जाती है? एपोजिशन. और वो नाउन हो, अगर वो नाउन हो या नाउन क्लॉज हो, नाउन फ्रेज हो, उसको बीच में इंसर्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? एपोजिशन. तो यहाँ पर क्या है? एपोजिशन. केस इन एपोजिशन जैसे होता है वही नाउन का केस ही होता है. एक एपोजिशन में नाउन के केसेस होते हैं ना, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, कॉम्प्लीमेंट और एपोजिशन, ये सब नाउन के केसेस होते हैं. सो किस केस में किस तरीके से वो यूज किया जा रहा है सेंटेंस में, वो उसका केस डिफाइन करता है. यहाँ पर ये एपोजिशन की तरह, यानी कि एक इंसर्ट करके उस पर्टिकुलर नाउन या प्रनाउन को मॉडिफाई कर रहा है. सो इट इज एन एपोजिशन टू नाउन और प्रनाउन. दिस इज नाउन. ही वॉज होपफुल दैट ही वुड सक्सीड. होपफुल अगेन, होपफुल क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के बाद में नाउन क्लोज, नाउन फ्रेज या नाउन आएगा तो वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट. ये भी क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट. माई वर्डिक्ट इज दैट. इज वर्ब टू बी, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में भी जो नाउन होगा या नाउन क्लॉज होगी, नाउन फ्रेज होगा, वो भी क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट. So this is how you can name these clauses as well. Next question, find the correct sentence. So one of the sentences is correct, rest are incorrect. She has been reading a novel for last week. She has been reading the novel since the last week. If the police had come a little before, the criminal will not have gone away. While she cooked, I wrote a book. अब देखिए इसमें कौन सा गलत होगा, या सभी गलत होंगे, ऐसा भी हो सकता है. एक और ऑप्शन इसमें होना चाहिए. ऑल आर रॉन्ग. वेदर दिस ऑप्शन हैज सम वैलिडिटी और नॉट विल कम टू नो लेटर ऑन. पहला देखिए, शी हैज बीन रीडिंग अ नॉवल फॉर लास्ट वीक. लास्ट वीक, सिर्फ लास्ट वीक, लास्ट प्लस कोई यूनिट ऑफ टाइम रिफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? सिंस. सो यहाँ पे क्या होना चाहिए? शी हैज बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस लास्ट वीक. द लास्ट वीक, द लास्ट प्लस कोई भी यूनिट ऑफ टाइम, वो रिफर करती है पीरियड ऑफ टाइम को.
पीरियड ऑफ टाइम को किससे रिफर करते हैं हम? 4 से। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। शी हैज बीन रीडिंग द नॉवल फॉर द लास्ट वीक। दिस इज अ ड्यूरेशन, दिस इज अ ड्यूरेशन, पीरियड या फिर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स लास्ट वीक 7 days, ड्यूरेशन ऑफ 7 days। और ये पॉइंट ऑफ टाइम, लास्ट वीक मतलब लास्ट वीक मंडे के लिए संडे भी हो सकता है, संडे ऑनवर्ड्स, सैटरडे ऑनवर्ड्स, फ्राइडे ऑनवर्ड्स, इस तरीके से हो सकता है। और द लास्ट वीक मीन्स लास्ट 7 days, पीरियड ऑफ 7 days। सो जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम आएगा वहां पे सिंस, जहां पे पीरियड ऑफ टाइम आएगा वहां पे 4। दोनों इसलिए गलत हो गए। इफ द पुलिस हैड कम, अगर कंडीशनल क्लॉज आपकी पास्ट कंडीशनल क्लॉज है ये, सो मेन क्लॉज किसमें होती है? वुड हैव, वुड हैव, वुड हैव गॉन अवे। ये पास्ट कंडीशनल का सेंटेंस है। पास्ट कंडीशनल किसमें होता है? हैड प्लस पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। और मेन क्लॉज किसमें होती है? वुड हैव में। सो यहाँ पे विल हैव की जगह वुड हैव होना चाहिए। While she cooked, I wrote a book। दोनों काम एक ही एस्पेक्ट ऑफ टाइम में नहीं होते। एक दोनों अगर सिंपल पास्ट में कहा जा रहा है तो इसका मतलब एक बैकग्राउंड में है और दूसरा हो रहा है। तो while she was cooking, I wrote a book। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज की पोजीशन क्या होती है? रिलेटिव क्लॉज होती है एग्जीक्यूटिव क्लॉज। एग्जीक्यूटिव की पोजीशन होती है बिफोर नाउन, एट्रीब्यूटिव आफ्टर वर्ब, वर्ब भी कौन सी? लिंकिंग वर्ब, प्रेडिकेटिव। और जो एग्जीक्यूटिव की पोजीशन होती है वही रिलेटिव क्लॉज की, यानी एग्जीक्यूटिव क्लॉज की। एम्बेडेड इंसर्टेड इन द मेन क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज के एक्सटेंडेड जो फंक्शन आएंगे वो क्या होंगे? टू रिफर टू एंटेसिडेंट, जो भी बात की थी हमने, जो नाउन है या फिर जो प्रनाउन है, प्रोबेबली पर्टिकुलरली नाउन के लिए ही यूज होती है वो, तो उस नाउन को एंटेसिडेंट मानते हैं और उस एंटेसिडेंट को दोबारा से रिफर करना उस रिलेटिव क्लॉज का काम भी होता है। जैसे पिछले कई सेंटेंसेस थे, ही केम टू द विलेज वेयर आई वॉज लिविंग जस्ट लाइक। तो विलेज एंड वेयर वाली क्लॉज विलेज के लिए रिफर करती है, तो वो एंटेसिडेंट हुआ और वो रिलेटिव क्लॉज का एक फंक्शन ये हुआ। रिलेटिव क्लॉज जक्स्टापोज भी हो सकती है, मतलब मेन क्लॉज के बिल्कुल बाद में भी आ सकती है, और इंसर्टेड भी हो सकती है। इंसर्टेड को क्या कहते हैं? एम्बेडेड। तो एम्बेडेड हो सकती है या इंसर्टेड इन द मेन क्लॉज, ये बिल्कुल ठीक है। नॉन एम्बेडेड या फिर जक्स्टापोज आफ्टर द मेन क्लॉज, ये भी बिल्कुल ठीक है। बिफोर द मेन क्लॉज नहीं होती। बिफोर द मेन क्लॉज कौन सी होती है? नॉन फिनिट क्लॉज। नॉन फिनिट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये दोनों तरह की क्लॉजेज मेन क्लॉज के पहले आ सकती हैं। So both A and B is our answer. So that is all for now. Hopefully this video was able to clear your doubts regarding some of the rules of English grammar. We will come back very soon taking yet another set of MCQs of English grammar. Till then, stay tuned, keep learning, stay motivated, and like this video, share it among your friends so that others are also benefited. And do subscribe to the channel so that you keep receiving these videos at the earliest. Thanks.